time calculations है ना, EST, LST, EFT, LFT. So all that time calculations we have carried out in previous lectures. ठीक है. So in today's lectures, somewhat different problem we will try to solve. Somewhat different way it has been given, and somewhat different manner we have to draw a network diagram. First of all, I will read the question which has been given here. So draw the network diagram and determine the critical path, total float, and show the critical path with the double lines. ठीक है ना, with the double line on the network if durations of network is as follows. ठीक है, what is the duration of network? So here activities are given A, B, C up to K. These are the different activities and the durations it has been given 5, 4 to up to 5. What are the statements which has been given? These statements are very very important in order to draw a network diagram. Okay. In previous cases, we have drawn a network diagram directly by in which the events it has been given. है ना? 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 ऐसा events given था. So say with the help of that we have drawn a network diagram. But in today's lectures, with the help of these statements, we have to draw a network diagram. ठीक है ना? So these statements is very very important in order to draw a network diagrams. So different statements are given, so we have to see these statements, these statements says, and depending upon this, we have to draw a network diagram. ठीक है. नंबर वन क्या है देखो यहाँ पे, एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटी ए एंड बी आर द इनिशियल एक्टिविटीज. ए और बी क्या है, ये इनिशियल एक्टिविटीज है. ठीक है. तो क्या है बोल रहा है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटी ए एंड बी आर द इनिशियल एक्टिविटीज एंड आर डन कॉन्करेंटली. ठीक है. व्हाट दिस मीन्स, व्हाट दिस स्टेटमेंट नंबर वन, सीरियल नंबर वन मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है बताओ. Yes. What is the meaning of this statement number one? At the start of the project, activity A and B are the initial activities and are done concurrently. क्या मतलब इसका? सर ए और बी एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट हुई है. Yes. The activity A and B it has been started at the same point. ठीक है ना? A और B जो है वो एक ही point से start हो रहा है. ठीक है ना? So the starting point of A and B are the same. ठीक है. So we will draw this network diagram in which we will start at the same point. ठीक है ना, सेम पॉइंट से अपन स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट अगेन दिस नंबर्स आर नॉट गिवन. एक चीज और याद रखो आप, जैसा इवेंट के नंबर्स थे वहाँ पे 1 2 3 4 5, तो वी हैव टू गिव द नंबर्स. ठीक है. तो जो नोट जो रहता है ना सर्कल के अंदर में जो नंबर्स आते हैं वो जैसे जैसे आगे जाएगा तो वी हैव टू गिव द नंबर्स टू दैट. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, वी विल गिव दिस एज 1. अब इसका और क्या दे देंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मैं. यस, दिस पॉइंट एंड वी विल हैव दिस अगेन एट दिस पॉइंट. ऐसा करिए एंड वी विल गिव दिस नंबर एज 2 and 3. इसका नंबर वो भी दे देता हूँ मैं भी. नेम्स वी विल ऑल्सो गिव द नेम्स टू दिस as 2 and this as 3. Okay. Whereas क्या बोला है, at the start of the project activity A and B are the initial activities, so we will give the names to this activity also. ठीक है ना. तो names is given as A. A का ड्यूरेशन मैं उसके साथ उसके डैश करके ड्यूरेशन भी लिख रहा हूँ. तो ड्यूरेशन फॉर A is 5, so we have written as A5. ठीक है. Whereas B भी स्टार्ट हो रहा है सेम पॉइंट से, so we will give this as B4. तो मैं यहाँ पे B लिखता हूँ और we will give this name as 4. B and we will give this name as 4. ठीक है. ये चीज समझ में आ गई सबको. तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दीज टू एक्टिविटीज आर सेम, दैट इज नोड 1 इज सेम एंड ए भी स्टार्ट हो रहा है और बी भी स्टार्ट हो रहा है. ए का ड्यूरेशन इज 5, बी का ड्यूरेशन इज 4. नेक्स्ट नंबर 2 स्टेटमेंट देखो. नंबर 2 सीरियल नंबर इज डी फॉलोज ए. डी फॉलोज ए क्या मतलब है कि डी नेक्स्ट होगा और ए प्रीवियस होगा. डी फॉलोज ए मतलब ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए देयर विल बी डी. ठीक है. तो डी फॉलोज ए. तो ए क्या हो रहा है, डी फॉलोज ए. नेक्स्ट और एक है सी एंड एफ फॉलोज बी. सी एंड एफ फॉलोज बी मतलब सी और एफ कब होगा, जब ओनली बी एक्टिविटी खत्म होगी जहाँ पे वहां से सी और एफ आएगा. ठीक है ना. सी और एफ विल बी स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट.
इसके लिए देखो ड्रॉ करो पहले, नेक्स्ट क्या ड्रॉ होगा, एक यहाँ पे फोर्थ नोड, तो डी फॉलोज ए, तो यहाँ पे डी लिखता हूँ मैं, डी विल बी फॉलोज ए, यहाँ पे डी फॉलोज ए, सी डी फॉलोज ए है, ठीक है, बट सी एंड एफ, सी क्योंकि सी अल्फाबेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सी एंड एफ फॉलोज बी, मतलब बी कंप्लीट होगा तो वही पॉइंट से सी और एफ भी आएगा, ठीक है। तो सी और एफ कहाँ पे आएगा, जहाँ पे मतलब जो पॉइंट पे बी खत्म होगा वही पॉइंट पे सी और एफ भी आएगा, सी एंड एफ। ये इसको ड्रॉ करो थोड़ा सा, इसको अंडरस्टैंडिंग हो रहा है आपको, रिकॉल हो रहा है कि ये कैसा ड्रॉ हो रहा है, यस सर। Yes, थोड़ा sir. सा Yes, sir. आपको प्रॉपर वे में उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज क्रिएट करेगा कि मतलब पहले जो थे वो बहुत सिंपल वे में ड्रॉ हो रहा था, ठीक है, बट हियर इन दिस केस इट इज समवॉट डिफरेंट वे वी हैव ड्रॉन दिस, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशंस में ड्रॉ होगा। वेट अ मिनट, थोड़ा सा ओके। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था, डी फॉलोज ए, तो डी फॉलोज ए, ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए डी विल बी स्टार्टेड, ठीक है। तो डी को थोड़ा सा अपन थोड़ा सा लंबे में ले लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ले लेंगे, वाई आई हैव टेकन दिस, आई विल टेक दिस, थोड़ा सा ऐसा ले लेंगे और इसको थोड़ा यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी फॉलोज ए मतलब ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए डी विल बी टेकन केयर, तो यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ, यहाँ पे डी लिख दिया यहाँ पे मैंने, और इसका नंबर्स में भी देख, डी वी हैव गिवन एज व्हाट आर द ड्यूरेशंस ऑफ डी, तो डी का ड्यूरेशन है देखो 5, ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 भी ले लिया, ठीक है। तो अब सेकंड स्टेटमेंट भी खत्म हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट खत्म हो गया था, सेकंड स्टेटमेंट भी खत्म हो गया कि डी फॉलोज है मतलब ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए डी विल बी कैरीड आउट, जिसका नंबर्स भी 4 नंबर्स, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, सी एंड एफ फॉलोज बी, सी एंड एफ, सी एंड एफ फॉलोज बी, मतलब बी के बाद में क्या आएगा, सी भी आएगा और एफ भी आएगा, ठीक है, एफ भी आएगा और सी भी आएगा। तो मैं यहाँ पे 2 नोड्स फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नोड ले लेता हूँ और थोड़ा सा इधर में इधर एक नोड ले लेता हूँ, ठीक है, तो फिर एक लाइन में ले लेता हूँ, तो इसको नाम दे देते हैं अपन 5 नंबर और इसको नाम दे देंगे आप 6 नंबर्स। दीज आर द नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स है ये इंडिकेट करेंगे कि अपना फ्लो डायरेक्शंस मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शंस में हो रहा है। और उसके अलावा फिर वी हैव विद हेल्प ऑफ दिस इट इज इजीएस्ट, मतलब ये थोड़ा सा कैलकुलेशंस में आसान जाता है, तो वी आर गिविंग द नंबर्स टू दिस, इवन तो अल्फाबेट्स में गिवन था वो एक्टिविटीज का नाम था, बट नोट्स वी आर गिविंग इन द नंबर्स, ठीक है। Yes. तो अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोलता है, थर्ड स्टेटमेंट इज सी एंड एफ फॉलोज बी, बी के कंप्लीट होने के बाद में क्या होगा, सी और एफ आएगा, तो यहाँ पे मैंने एक सी बना देता हूँ और एफ भी बना देता हूँ, तो वी विल गिव दिस एज सी, दिस एज सी एंड दिस एज एफ। इसको नाम दे देते हैं आप सी, सॉरी सी एंड एफ, यस, ओके। सी, सी का ड्यूरेशन कितना है बताओ, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सी, सी का ड्यूरेशन कितना है, 2. 2. यस 2, और एफ का कितना है, एफ का देखो 6. 6. 6,
So this we will give this number as alphabet as F and this as 6. ठीक है, ये हो गया F, C भी हो गया, F भी हो गया. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाओ, C एंड F फॉलोज B. तो ये देखो B के खत्म होने के बाद C और F वही पॉइंट से स्टार्ट हो गए. यस, 5 और 6 नंबर्स दे दिया आपने. अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोलता है, फोर्थ लाइन क्या बोलता है, फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोलता है, E फॉलोज C एंड D. E फॉलोज C एंड D मतलब C एंड D जो पॉइंट पे खत्म हो रहा है वही पॉइंट से आपका क्या स्टार्ट हो रहा है. फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोलता है, दैट इज E फॉलो C एंड A. जहाँ पे C और A खत्म हो रहा है वही पॉइंट से क्या स्टार्ट हो रहा है, E स्टार्ट हो रहा है. अब E स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. तो मेरा पॉइंट देखो यहाँ पे A कहाँ पे खत्म हो रहा है, 2 पे. मेरा C कहाँ खत्म हो रहा है, 5 पे. बट दीज टू आर द डिफरेंट पॉइंट्स. तो अब कैसा करेंगे हम इसका बताओ, एनी ऑप्शन फॉर दिस. Dummy activity. Sir, it's dummy activity. यस, वी हैव टू अप्लाई फॉर अ डमी एक्टिविटी. ठीक है ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डमी एक्टिविटीज यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो डॉटेड लाइन यूज कर लेंगे अपन डमी एक्टिविटीज के लिए. तो डमी एक्टिविटीज, यस, डॉटेड लाइन. So dummy activities, we will have this as dummy activities. Okay, arrows थोड़ा सा देख लेंगे. तो जिस वे ये डमी एक्टिविटीज हो गया. ठीक है, और वो पॉइंट से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एक्टिविटी इज ई. तो मैं यहाँ पे ई एक्टिविटी ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, ये लाइन में थोड़ा सा यहीं पे ई एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा. दैट इज गिवन एज 7 नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे ई एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है. इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे दोनों भी. And we will give this number as E and the duration for this is 6. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया थोड़ा सा. नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट भी खत्म हो गया. ई फॉलो सी एंड ई. तो यस, विद द हेल्प ऑफ द डमी एक्टिविटीज ई इट हैज बीन फॉलोड विद अ ड्यूरेशन ऑफ 6. ठीक है ना, ई का ड्यूरेशन है 6. नेक्स्ट फिफ्थ स्टेटमेंट देखो, जी एंड एच फॉलोज ई. जी एंड एच फॉलोज ई मतलब ई जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से जी और एच स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो जी और एच फॉलोज ई. बट ठीक है, जी और एच क्या हो रहा है, ई मतलब जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से ई फॉलोज हो रहा है. ई यहाँ पे खत्म हो रहा है वैसे ही जी और एच होगा. और देखो जी और एच कहाँ पे हो रहा है, और एक स्टेटमेंट नेक्स्ट है, सिक्स स्टेटमेंट भी देखते जाओ साथ साथ में. जी, जे फॉलोज बोथ डी एंड जी. जे स्टेटमेंट जो होगा वो जहाँ पे डी और जी जाके मिलेगा वही पॉइंट से, सेम पॉइंट से डी और जी जहाँ पे मिलेगा वही सेम पॉइंट से एट द सेम पॉइंट जे विल बी कैरिड आउट. ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि इसको मिलाना पड़ेगा आपको. ठीक है, हियर वी विल हैव द स्टेटमेंट एज दिस. कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आएगा. ठीक है, ये स्टेटमेंट था अपना पास जो चल रहा था, फिफ्थ स्टेटमेंट था, दैट इज जी एंड एच फॉलो जी. यस, तो जी और एच जो है वो फॉलोज हो रहा है. यहाँ पे जी ले लेंगे और एच ले लेंगे. एच भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे कॉपी करके. यहाँ पे एक पॉइंट पे एच ले लेंगे. दिस नंबर एज 7, सॉरी 8 नंबर. ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ वही लाइन में. ई
ई फॉलो सी एंड ए, यस ई फॉलो सी एंड ए, तो ये तो करेक्ट हो गया था। उसके बाद में आया था फिफ्थ नंबर पे जी एन एच फॉलोज ई। तो जी एन एच फॉलोज ई मतलब ई के जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से जी और एच हो रहा है, और जी और एच, तो यहाँ पे एच लिख देते हैं, दिस एज जी एंड दिस एज एच, ठीक है, इसको एच दे देते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसमें, और मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ये और ज़्यादा क्लियर होगा कि हाउ इट हैज़ बीन ड्रॉन, ठीक है ना। उसमें अपन टैली भी कर लेंगे कि वेदर वी हैव ड्रॉन दिस इन करेक्ट मैनर और नॉट। तो ये जी, जी का ड्यूरेशन से 8, जी एन एच एस 8। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो सिक्स स्टेटमेंट देखो, जे फॉलोज बोथ डी एंड जी। जहाँ पे डी एंड जी खत्म हो रहा है वही सेम पॉइंट पे, डी एंड जी जहाँ पे खत्म हो रहा है वही पॉइंट पे जे स्टार्ट हो रहा है। तो डी और जी, है ना, डी और जी। तो देखो डी भी इसलिए मैंने जी को क्या किया था, एक ही पॉइंट पे मेट किया था, क्यों, क्योंकि वी हैव टू हैव अ सिंगल पॉइंट फॉर जे, ठीक है ना। तो डी यहाँ पे फोर्थ नोड पे खत्म हो रहा है, सेवेंथ नोड मतलब जी जो पॉइंट है सेवेंथ नोड वाला वो भी फोर्थ पे खत्म हो रहा है। तो देयरफॉर वी हैव स्टार्टेड एट दिस पॉइंट एज जे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट इज वी विल हैव दिस एज जे, लास्ट पॉइंट एज जे, नाइन पॉइंट एज जे, as J. We will copy this J, and J का ड्यूरेशन कितना है 8, यस इट इज हैविंग अ ड्यूरेशन ऑफ 8। यहाँ तक आ गया। उसके बाद में अब सेवेंथ स्टेटमेंट देखो, आई फॉलोज एफ, आई फॉलोज एफ, एफ तो हो गया था अपने पास, ठीक है, बट आई उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट ड्यूरेशन में क्या होगा, आई, आई फॉलोज एफ, ठीक है। और आई देखो आई फॉलोज एफ है, आई वर्ड और एक बार आया नीचे में देखो 8 स्टेटमेंट ये इसमें कैसे, वाइल ड्राइंग दिस नेटवर्क डायग्राम वी हैव टू सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट आल्सो। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी थोड़ा सा एक मतलब क्लियर कर लो। 8 स्टेटमेंट देखो, ए फॉलोज बोथ एच एंड आई, मतलब एच और आई इट इज मीटिंग एट द सेम पॉइंट, एट एच और आई इट इज मीटिंग एट द सेम पॉइंट, मतलब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो वी आर कॉपिंग दिस, yes, and we will have this as in this way, ये हो जाएगा आपका आई, लिख लेंगे आप आई स्टेटमेंट, एंड द ड्यूरेशन फॉर दिस इज 3, 3 ड्यूरेशन। तो थोड़ा सा कर लो। अब इसके बाद में लास्ट के फॉलोज बोथ एच एन आई जहाँ पे मीट हो रहा है वहाँ से के निकलेगा। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लास्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जे एंड के आर पैरेलल एक्टिविटीज एंड द प्रोजेक्ट एंड, मतलब ये दोनों पैरेलल एक्टिविटीज है और प्रोजेक्ट वही पॉइंट पे एंड हो रहा है, मतलब एंड पॉइंट इट हैज बीन स्टेटेड, ठीक है ना। यहाँ पे के अलग पॉइंट पे नहीं हो रहा है बट इट इज एंडिंग एट द सेम पॉइंट, ठीक है। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, के एंड जे एंड के आर पैरेलल एक्टिविटीज एंड द प्रोजेक्ट एंड, मतलब ये जो एक्टिविटी है और दूसरी भी जो आएगी वो भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और एंड पॉइंट इट इज हैविंग द सेम सेम एंड पॉइंट, ठीक है ना। बोथ एक्टिविटीज इट इज हैविंग द सेम एंड पॉइंट। तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, and this we will keep this as k, and the duration for the k is 5 years, 5, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव ड्रॉन अ नेटवर्क डायग्राम, ठीक है ना। तो इन दिस वे वी हैव ड्रॉन अ नेटवर्क डायग्राम। फिर से अपन इसको रीड करके वी विल सी द वेरियस स्टेप्स जो अपन ने ड्रॉ किए थे वो प्रॉपर वे में ड्रॉ हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेटमेंट इज एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज ए एंड बी आर द इनिशियल एक्टिविटीज, तो यस ए बी दोनों इनिशियल एक्टिविटीज हो गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या था, डी फॉलोज ए, तो यस डी इज फॉलोइंग ए ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए, डी विल बी स्टार्टेड, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, सी एंड एफ फॉलोज बी, मतलब सी एंड एफ जहाँ पे मतलब एक ही पॉइंट से बी जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से सी और एफ निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी कहाँ पे हो रहा है एंड, यस हियर बी इज एंडिंग एंड सी एंड एफ इज
it has been started at the same point. Yeah. तो मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया. फोर्थ स्टेटमेंट, E follows C and A, मतलब C and A जहाँ पे मीट हो रहे हैं वही सेम पॉइंट से E स्टार्टिंग, E स्टार्टिंग एट A and C. यस, तो यहाँ पे E भी स्टार्ट हो गया. देखो मतलब ये फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया. फिफ्थ स्टेटमेंट क्या बोलता है, G and H follows E. G and H follows E मतलब G और H एक ही पॉइंट पे मीट हो रहे हैं और वही पॉइंट से सेम E स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, E जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से G और H स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, G and H follows E, तो E is at this point और G और H वही सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं. यस, मतलब फिफ्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सिक्स स्टेटमेंट क्या बोलता है, J follows both D and G, मतलब D and G they are meeting at the same point और जहाँ पे मीट हो रहे हैं वही सेम पॉइंट से J निकल रहा है. ठीक है, तो D और G देखो एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं क्या, तो यहाँ पे देखेंगे आप D. यस, D is also meeting. यस, एंड G is also meeting at फोर्थ नोड और उसी से J स्टार्ट हो गया. नेक्स्ट सेवेंथ स्टेटमेंट, I follows F. I follows F. F कहाँ पे खत्म हो रहा है देखो. यस, F खत्म हो रहा है यहाँ पे. उसके बाद नेक्स्ट इज I follows F. यस, नेक्स्ट एट स्टेटमेंट, K follows both H and I, मतलब H और I यहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से K निकल रहा है. और लास्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है कि दो these two J और K activities are parallel to each other and they are ending at the same point. They are ending at the same point. मतलब ये लास्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. They are ending at the same point. ठीक है, so in this way, we have drawn a network diagram. Okay? So whether this diagram, you have understood this diagram? Yes, everyone. ये डायग्राम कैसे निकाली ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा कैसा है कि ये जो स्टेटमेंट्स गिवन रहते हैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करते हैं. लेकिन अल्फाबेट्स में जो स्टेटमेंट्स गिवन है थोड़ा सा आप मतलब थोड़ा सा रफ पेंसिल से ड्रॉ करेंगे और प्रॉपर वे में ड्रॉ होगा. तो एवरी सेंटेंस इट इज टू बी मतलब टेकन केयर वाइल ड्रॉइंग अ नेटवर्क डायग्राम. हर एक स्टेटमेंट फुलफिल होना चाहिए. मतलब जितने भी 9 स्टेटमेंट्स है यहाँ पे, तो while drawing a network diagram we have to see all these 9 statements. मतलब ये 9 पूरे statements simultaneously fulfill हो रहे हैं while drawing a network diagram. we have to see in proper way. ठीक है, तो ये अपने फिर से अपने रीड कर देते हैं कि all these 9 statements it has been fulfilled while drawing a network diagram. ये थोड़ा सा आज का प्रॉब्लम डिफिकल्ट था, मतलब अलग इसमें था in which the statements it has been given. ठीक है, तो लास्ट जो प्रॉब्लम थे वो बहुत ज़्यादा सिंपल थे. डायरेक्टली वी हैव ड्रॉन अ नेटवर्क डायग्राम, बट इन टुडेस प्रॉब्लम इट हैज बीन गिवन इन द स्टेटमेंट फॉर्म. ठीक है, ये 9 स्टेटमेंट्स थे. वी हैव ड्रॉन ऑल दिस डायग्राम. ठीक है, डिफरेंट जो नेटवर्क डायग्राम था वी हैव ड्रॉन अ नेटवर्क डायग्राम. नेक्स्ट क्या निकालना था फिर से अपन रीड कर लेते हैं. क्या बोला है देखो उसमें, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम एंड डिटरमाइन क्रिटिकल पाथ. नेक्स्ट क्या निकालो, क्रिटिकल पाथ निकालो बोला है. नेक्स्ट स्टेटमेंट ऊपर में क्या बोल रहा है देखो, टोटल फ्लोट निकालो है एंड शो द क्रिटिकल पाथ विथ डबल लाइन ऑन द नेटवर्क डायग्राम. ठीक है, तो डबल लाइन से आप इसमें ड्रॉ करके भी बताओ कि कौन सा क्रिटिकल पाथ है. तो आगे अपन क्रिटिकल पाथ का मतलब जो पूरा टेबल वो ड्रॉ करेंगे और उसके बाद भी फाइनली वी विल फाइंड आउट एंड वी विल शो विद हेल्प ऑफ द डबल लाइन. ठीक है, डबल लाइन से अपन शो भी करेंगे कि व्हाट इज द नेटवर्क डायग्राम. यस, उसके बाद देखेंगे व्हाट वी हैव टू ड्रॉ, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. तो दिस थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट. क्या निकालना पड़ता है अपने को. उसके बाद में ESTL LST. तो दिस बॉक्स आई एम पेस्टिंग एट एवरी पॉइंट. ठीक है ना, जितने पॉइंट्स अपने पास ऑल दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट दिस ESTL LST. ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट के लिए वी हैव टू फाइंड आउट दिस थिंग्स. यस, कितने थे देखो अपने पास 9 है. 1 2 3 4 5 6 7 8. यस, ये सबके भी जीरो नहीं रहेगा. What is the things, how we have to find out this EST and LFT? What are the conditions? क्या conditions थे on which basis we will find out this EST and LFT? क्या conditions होते हैं EST के find करने के लिए बताओ. How we are finding out EST? EST फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे और वो Okay. मैक्सिमम रहेगा. ठीक है ना, इट इज टू बी कैलकुलेटेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शंस एंड इट शुड बी अ मैक्सिमम. ठीक है, और उसके लिए क्या करना है आपको, एरो हेड देखना है. ठीक है ना, एरोज देखना है.
EST फाइंड करना है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, मैक्सिमम होगा और एरो एरो देखना है आपको, ठीक है ना। जो भी फिगर्स में जो एरो रहेंगे तो विद हेल्प ऑफ दैट एरोज वी हैव टू फाइंड आउट दिस EST, ठीक है ना। EST जो ड्रॉ होगा वो एरोज के बेस पे ड्रॉ होगा, ठीक है। तो EST फॉर द फर्स्ट स्टेज, तो फर्स्ट इनिशियल में तो कोई इससे पहले में कोई एक्टिविटीज नहीं है, तो वी विल हैव दिस एज 0, ठीक है ना। स्टार्टिंग में क्या रहेगा आपके पास 0 रहेगा। What is EST for the next case? जैसा नोड नंबर 1 था उसके लिए 0 हो गया। EST फॉर 2 नोड, बताओ EST अर्लियर स्टार्टिंग टाइम फॉर 2 कितना आएगा? 5. 5. 5, ठीक है। एक ही एरो हेड है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वी विल हैव दिस एज 5। इसको मैं पेस्ट करता हूँ और इसको एडिट कर देंगे अपन एज 5, दिस एज 5। अब नेक्स्ट थर्ड नोड आओ। थर्ड नोड पे देखो अगेन 1 एरो इज देयर, एक ही एरो मीट हो रहा है थर्ड नोड पे, एक ही एरो आके मिल रहा है, ठीक है। तो अगेन 1 एरो इज देयर विच इज कमिंग फ्रॉम नोड नंबर 1, ठीक है। तो 4 प्लस 0 कितना होगा? 4 प्लस 0 4. 4, तो दिस एज 4, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 4। नेक्स्ट फोर्थ नोड देखो आप, तो फोर्थ नोड से पहले में फोर्थ नोड में कैसा होगा, ये पूरा होने के बाद 7 के बाद 4 रहेगा, तो फोर्थ अभी अभी इतने जल्दी अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 7 होगा तो फोर्थ कैलकुलेट होगा, 2 हो गया तो फोर्थ नहीं होगा, इसके साथ साथ 7 भी कैलकुलेट होना चाहिए। इसके लिए मैं अभी फोर्थ नोड अभी नहीं करता हूँ, टाइम बीइंग वी विल लीव दिस फोर्थ नोड। इंस्टेड ऑफ फोर्थ नोड वी विल हैव दिस एज फिफ्थ नोड, ठीक है। फिफ्थ में कितने एरोज मीट हो रहे हैं देखो, एक तो डमी एक्टिविटीज और एक तो किसका हो रहा है, ये वाला एक्टिविटीज का। बट डमीज इट इज हैविंग नो ड्यूरेशन, कोई ड्यूरेशन रहता है क्या इसका? देयर इज नो ड्यूरेशन फॉर दिस, है ना, तो 0 कंसिडर होता है। अब यहाँ पे देखो इसका कितना रहेगा, देखो वैसे अगर 0 प्लस 5 डमी अगर लेते हैं तो 0 प्लस 5 कितना होगा? 5। वेराज अगर यहाँ पे देखते हैं आप तो 2 है यहाँ पे 4, तो 4 प्लस 2 इज 6. 6, तो इसके लिए कितना आएगा? 6। 11. करेक्ट है क्या? ये सबको समझ में आया? 6 के साथ है ये फिफ्थ नोड Yes, के sir. लिए। यस, 2 खुद का ड्यूरेशन है और EST प्रीवियस इज 4, तो 4 प्लस 2 इज 6। अब 6 की तरफ जाएंगे, सिक्स्थ नोड की तरफ जाएंगे। सिक्स्थ नोड में अगेन एक ही एरो मीट हो रहा है, ठीक है। तो ओरिजिनल उसका ड्यूरेशन है 6 और प्रीवियस EST है 4, तो 6 प्लस 4 इज 10. here we will have this as 10, क्या रहेगा इसका? 10। अब सेवेंथ नोड आ जाओ। सेवेंथ में कितने एरोज मीट हो रहे हैं? एक ही एरो आ रहा है, ठीक है ना, एक ही एरो आ रहा है जो 5 की तरफ से आ रहा है, ठीक है। एक ही एरो आ रहा है 5 की तरफ से, तो 6 इसका ओरिजिनल ड्यूरेशन से और EST पुराना जो है वो 6 है, तो 6 प्लस 6 इज 12. 12, तो 7 के लिए क्या आ जाएगा? दिस एज 12, दिस एज 12। नेक्स्ट अब आएगा देखो, अब आ रहा है फोर्थ नोड, क्योंकि सेवंथ आपने निकाल लिया, 2 भी निकाल लिया। अब फोर्थ नोड अब कर सकते हैं आप, अब कैलकुलेशन करके बताओ। फोर्थ नोड में कितने एरोज मीट हो रहे हैं? एक 2 से 4 की तरफ जा रहा है, एक 7 से 4 की तरफ जा रहा है। आउट ऑफ दिस 2 विच विल बी द मैक्सिमम? So 20. 20. यस 20. 20, क्योंकि 5 प्लस 5 इज 10 और दूसरा है 8 प्लस 12 इज 20, तो मैक्सिमम इज 20, ठीक है ना। तो मैक्सिमम क्या लेंगे आप यहाँ पे? फोर्थ नोड के लिए लेंगे आप 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट इसमें था, तो वी हैव टेकन दिस एज 20। नेक्स्ट फोर्थ के बाद में 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8। अगेन 8 इज हैविंग समवॉट कंफ्यूजन। 8 में देखो कितने एरोज मीट हो रहे हैं, एक 7 से 8 की तरफ आ रहा है और 6 से 8 की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों में से मैक्सिमम कौन सा रहेगा 8 के लिए, बताओ? यस 16. 16. 16, ठीक है ना। तो 12 प्लस 4 इज 16 एंड 10 प्लस 3 इज 13, ठीक है ना। 10 ये 10 है प्लस 3 13, ये भी ले सकते हैं आप, या फिर 12 प्लस 4 इज 16, तो मैक्सिमम इज 16, तो वी विल टेक दिस एज 16, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? दिस एज 16, ठीक है ना। तो इसको मैं एडिट करता हूँ, दिस एज 16। नेक्स्ट नाइन्थ नोड, लास्ट
Again it is having two arrows meeting at 9th node. एक 4 से 9 की तरफ आ रहा और 8 से 9 की तरफ आ रहा, तो मैक्सिमम कौन सा रहेगा दोनों में से? यस 28. 28 मैक्सिमम इज 28. 28. ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इसको और वी विल एडिट दिस एज 28. In this way, ESP to be calculated in forward directions, also the maximum value and the arrowhead. ये तीन conditions हरदम याद रखना है. फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, मैक्सिमम होगा और एरो हेड देखना भूलना नहीं है आपको. ठीक है, तो ऑलवेज वी हैव टू सी हाउ मेनी एरोज आर मीटिंग एट द पर्टिकुलर नोड. वो नोड पे कितने एरोज जाके मिल रहे हैं, तो आउट ऑफ दैट एरोज द मैक्सिमम वैल्यू वी हैव टू टेक. ठीक है ना, जैसे ये लास्ट एग्जांपल में हुआ, लास्ट इसमें कि this 20 plus 8 is 28 and this 16 plus 5 is 21. ठीक है, तो 21 बड़ा है कि 28 बड़ा है, तो 28 it is maximum value. ठीक है, तो अब यहाँ पे एंड हो रहा है, तो EST और अब नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ LFT, दैट इज द लेटेस्ट फिनिश टाइम. फॉर फाइंडिंग आउट द लेटेस्ट फिनिश टाइम वी हैव टू फाइंड आउट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और यही कंडीशन रिवर्स हो गई. मैक्सिमम था तो अब क्या लेंगे आप, मिनिमम लेंगे. और LFT की थर्ड कंडीशन क्या है बताओ, व्हाट इज द थर्ड कंडीशन फॉर फाइंडिंग आउट LFT? Tail end. Minimum. Tail end देखना minimum value. यस, टेल एंड देखना है और मिनिमम वैल्यू देखना है. ठीक है, तो अभी मैं पेस्ट करता हूँ सेम वैल्यू फॉर EFT, क्योंकि कुछ ना कुछ तो स्टार्ट होगा अपना, तो अब जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते. तो जो वैल्यू थी वही मैं 28 LFT के लिए यूज कर लिया मैंने इसको. एक थंब रूल के जैसा, मतलब EST एंड LFT एट द एंड पॉइंट इज सेम, whereas EST and LFT at the starting point is also same. ठीक है, तो ये कंडीशंस को देखते हुए वी हैव टेकन दिस LFT फॉर द एंड पॉइंट एज 28. जो आया था EST वही LFT अपने कंसिडर करके 28 से स्टार्ट. अब रिवर्स में आओ, रिवर्स में आएंगे तो 9 से पहले 8 है. 8 के पास कितने टेल एंड जाके मीट हो रहे हैं, एक ही टेल एंड आ रहा है जो 9 की तरफ से आ रहा है. तो 28 माइनस 5 कितना होगा? यस, 28 माइनस 5 कितना होगा? 23. 23. 28 माइनस 5 कितना? 23. 23. 23. Yes. Next 28 माइनस 8. अब फोर्थ नोड के लिए 20. 28 20. 20. So here we will have this as 20. अब नेक्स्ट 4 से पहले में आप 7 के, अब 7 थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा. 7 क्यों कंफ्यूज करेगा देखो, क्योंकि उसको दो टेल एंड जाके मीट हो रहे हैं. एक 4 से 7 की तरफ आ रहा और 8 से 7 की तरफ आ रहा है. ठीक है, तो अब 4 वाला पहले देख लो. ठीक है, तो 20 माइनस 8 कितना होगा? 20 माइनस 8 12. 12. और दूसरा देखो, दूसरा भी देखते जाओ. 23 माइनस 4 कितना होगा? 19. 19. तो मिनिमम कौन सा, 19. मिनिमम कौन सा हो 12. गया? 12. तो वी विल टेक 12. मिनिमम एज 12. ठीक है, तो मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे 12 LFT. हो गया 7. अब 6 नोड पे आ जाओ वन बाय वन. ठीक है, रिवर्स वे में अपन 6 पे आ गया. 6 में एक ही टेल एंड आके मीट हो रहा है जो 8 से आ रहा है, 8 से आ रहा है, 8 नोड से आ रहा है. यस, तो 23 प्रीवियस था, तो 23 माइनस 3 कितना आएगा? 20. 20. 20. 20. You will have this as 20. फिफ्थ नोड पे आ जाओ. फिफ्थ नोड पे एक ही टेल एंड आके मीट हो रहा है जो 7 से आ रहा है, 7 to 5 आ रहा है. तो 7 का LFT is 12. 12 minus 6 is 6. yes 6. 6. 6. अब फिफ्थ नोड भी खत्म हो गया. अब थर्ड नोड पे आ जाओ. ठीक है, थर्ड नोड पे कितने टेल एंड जाके मीट हो रहे हैं देखो. अब यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूज है. टेल एंड पे थर्ड नोड पे 5 से थर्ड पे आ रहा, 6 से भी थर्ड पे आ रहा. तो पहले 5 से देख लेंगे अपन. 5 का देखो LFT कितना था? 6. 6 माइनस 2 इज 4. 4. 20 माइनस 6 इज 14. 14. तो मिनिमम इज 4. 4. We will take 4. 4. अब सेकंड नोड, सेकंड नंबर, सीरियल नंबर 2 नोड. ठीक है, उसमें भी दो आके मीट हो रहे हैं. एक 4 से भी आ रहा है, एक डमी आ रहा है. तो डमी इज देयर इज नो यूज ऑफ डमी. ठीक है ना, whereas we will take this, we can take this minimum value also. ठीक है ना, डमी एक्टिविटीज का मिनिमम वैल्यूज भी ले सकते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 20 है. 20 माइनस 5
कितना होगा? 15. 15. 15। और दूसरा क्या होगा? 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 कितना आएगा? 0 है। 6. डमी एक्टिविटीज तो कोई वैल्यू 6. नहीं देता, तो 6 माइनस 0 इज 6, तो वी कैन टेक दिस एज 6, यहाँ पे ले लेंगे आप 6, वी कैन टेक दिस एज 6। लास्ट, अब देखो 1 एक्टिविटीज के लिए अगेन 2 आके मीट हो रहे हैं, एक 2 to 1 हो रहा है, 3 to 1 हो रहा है। 2 to 1 में देखो 6 माइनस 5 1, 1. 4 माइनस 4 कितना आएगा? 0. 0. शून्य. शून्य. 0, so we will take minimum as 0 instead of 1 and 0, तो minimum is 0, ठीक है। तो यहाँ पे 6 में से अगर 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 नहीं, उसके अलावा 4 माइनस 4 इज 0, तो 1 और 4 से कम कौन है? तो 0 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चेक भी मिल गया, तो इनिशियल इज EST 0 था, तो अभी LFT भी 0 आ गया। और देखो लास्ट पॉइंट में 28 28, दैट मीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर सेम फॉर EST एंड LFT, ठीक है। तो एक ये छोटा सा चेक मिलता है कि जैसा जितना जो वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट रहती है वही वैल्यू ऑफ एंड पॉइंट भी रहती है, मतलब स्टार्टिंग एंड पॉइंट फॉर दिस विल बी सेम, 0 0 28 एंड 28। अब क्रिटिकल एक्टिविटीज एक आपके फिगर से भी मालूम कर सकते हैं आप, और टेबल से भी मालूम कर सकते हो, जो आने वाला अभी मैं बताऊंगा आपको टेबल में, उससे भी मालूम कर सकते हैं, प्लस यहीं से भी मालूम कर सकते हैं। आप यहाँ से बताओ कि क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन से हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द क्रिटिकल एक्टिविटीज, कौन से रहेंगे बताओ। फिगर में कुछ दिख रहा है क्रिटिकल एक्टिविटीज, कैसे जज करेंगे आप? हाउ वी विल जज अ क्रिटिकल पाथ फॉर दिस? क्रिटिकल पाथ ये नेटवर्क डायग्राम से कैसे जज होगा बताओ? यस 1 1 3 5 7 4 9. यस, इन विच द वैल्यूज फॉर EST एंड LFT सेम, ठीक है। जहां जहां पे सेम वैल्यूज है EST और LFT की, वो वैल्यूज और वो पाथ जो रहेगा दैट इज नथिंग बट द क्रिटिकल पाथ, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो 1 1 को देखो, 1 नोड को 0 0 था, थर्ड नोड को 4 4 है, फिफ्थ नोड को 6 6 है, ठीक है। इसके बाद आगे जाएंगे आप, तो आगे जाएंगे तो फिफ्थ के बाद आ जाएगा 7, ठीक है। एक एक क्योंकि देखो 6 नहीं आ सकता क्योंकि 10 20 है, अलग है। 7 आ गया, 12 12, उसके बाद आएगा देखो 4 20 20, एंड लास्ट आएगा 28 एंड 28। तो विद द हेल्प ऑफ डबल लाइन वी कैन शो दिस एज अ क्रिटिकल पाथ, ठीक है ना। तो उसने फिगर में बोला था कि हमको डबल लाइन से शो करो कि क्रिटिकल पाथ कौन सा रहेगा, ठीक है। इसने खुद स्टेटमेंट में बताया था, तो मैं ये डबल लाइन से ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ कि दिस इज नथिंग बट द क्रिटिकल पाथ, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ अ डबल लाइन। तो 5 आ गया। नेक्स्ट इज दिस 7, और आएगा अब दिस दिस, और लास्ट आएगा ये। In this way, with the help of double line, we have shown a critical path, ठीक है ना, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि विद द हेल्प ऑफ अ डबल लाइन वी हैव टू शो अ क्रिटिकल पाथ। तो ये डबल लाइन से मैंने शो कर दिया कि ये क्रिटिकल पाथ है। 1 3 5 7 4 एंड 9 इज द क्रिटिकल पाथ, ठीक है। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ 50% आधा सॉल्व हुआ है, आधा प्रॉब्लम टेबल में सॉल्व होगा आपका, ठीक है ना। तो टेबल में डाटा फीड करना है और रिमेनिंग टाइम कैलकुलेशंस आपको खुद करना है, क्योंकि अभी टाइम अपना खत्म हो चुका है ना, 11 1 हो गया है। तो ये होमवर्क में लिख लो या फिर आपके असाइनमेंट में लिखो कि रिमेनिंग प्रॉब्लम यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर, ठीक है ना। तो टाइम जितना था, मेरे पास एक्सेल शीट है, तो एक्सेल शीट बट उसमें वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो आपकी वैल्यूज आपको पुट करना है, ठीक है, आपको वो वैल्यूज पुट करना है। मैं वो शीट बता देता हूँ आपको कि वो वैल्यूज आपको उसमें शीट में डालना है, ठीक है। यस, तो दीज आर द वैल्यूज। यहाँ पे ड्यूरेशंस लिखो आप, ठीक है। ये डबल लाइन से मैंने जो डबल लाइन ड्रॉ किया था, ये पूरे डबल लाइन से अपने ये सारी चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये वैल्यूज आपको पुट करना है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो दीज वैल्यूज टू बी फीड, और नेक्स्ट लेक्चर में आप पहले ये वैल्यूज बताएंगे मेरे को, और फिर उसके बाद फिर वी विल हैव द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है।
Is that clear to everyone? Yes. Yes, sir. समझ में Yes, आया? sir. हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम में नेक्स्ट लेक्चर में आप ये पूरे वैल्यूज मेरे को बताएंगे एक्सेल शीट के, फिर नेक्स्ट में अपन वी विल हैव द समवॉट डिफरेंट प्रॉब्लम, ठीक है? तो हियर वी विल एंड दिस टुडेज लेक्चर इन विच वी हैव ड्रॉन अ नेटवर्क डायग्राम, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और जिसमें डबल लाइन से अपन ने इंक्लूड भी कर दिए कि कौन सा क्रिटिकल पाथ है, वो भी शो कर दिए, और ये एक्सेल शीट भी शो करेगा कि जहाँ जहाँ पे जीरो वैल्यूज आ रही है वो क्रिटिकल पाथ है। तो आप टैली भी कर सकते हैं, जैसा जीरो वैल्यूज कहाँ पे आ रही है, तो वो जीरो वैल्यूज और विथ डबल लाइन सही है कि नहीं है, सही रहता है, बट क्रॉस चेक हो जाता है ये, ठीक है ना? डबल लाइन और ये जीरो जीरो जो वैल्यूज आएंगी आपकी ये एक्सेल शीट में, तो वो दोनों एक क्रॉस स्टडी हो जाता है कि दिस क्रिटिकल पाथ इज करेक्ट और नॉट, ठीक है? So here we will end this today's lectures. Any doubts related with this? किसी को कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया है? यस, एनीथिंग विच इज नॉट बीन